So we are now studying about the Anna Freud, that कि वो कौन थी और उसकी contributions क्या हैं, साइकोलॉजी में, साइको एनालिसिस में उसकी contributions क्या हैं और actually जो है उसने क्या काम किया. ठीक है. Anna Freud, first of all let me tell you, Anna Freud was the daughter of Sigmund Freud. She was influenced by her father's psychoanalytic theories, but her own contributions to ego psychology and child psychoanalysis made her an important theorist in her own right. ठीक है. अच्छा, अभी हमने पढ़ा था साइकोएनालिसिस, हमने प्रीवियसली पढ़ा था. तो वो तो स्कूल ऑफ थॉट था जिसमें मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जिन स्कूल ऑफ थॉट्स के फिर आगे फॉलोअर्स होते हैं, यानी कि वो किसी स्कूल ऑफ थॉट को वो फॉलो कर रहे होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं नियो. ठीक है. एंड जैसे न्यू बिहेवियरिज्म था, इसी तरह जो है वो न्यू फ्रॉइडियंस था. बेसिकली शी वाज द follower of the Sigmund Freud and she made the new Freudian school, जिसमें उसने जो है वो अपने ही फादर की टीचिंग्स को जो था, अपने ही फादर की जो कंट्रीब्यूशन थी उसको उसने फॉलो करना शुरू किया. एंड शी न्यू फ्रॉइडियन में फिर आगे आप पढ़ेंगे कि कार्ल जूंग भी न्यू फ्रॉइडियन ही था, जिसने आगे जो है वो सिगमंड फ्रॉइड वाज द ओनली पर्सन हु मेड द साइकोएनालिसिस. बट अभी जितने आगे आप लोग पढ़ोगे उसमें जो है वो कार्ल यूंग एक पर्सन है, एरिक एरिक्सन है और जो है वो कैरन हॉर्नी है. ठीक है. ये लोग जो थे वो बेसिकली द फॉलोअर्स ऑफ द न्यू फ्रॉइडियन. ठीक है. और इन्होंने सबने फॉलो फ्रॉइड को ही थ्योरी को किया था, लेकिन ये कि उन्होंने फिर आगे फर्दर जिस तरह डेवलपमेंट करते गए, यू विल सी इन द फर्दर कमिंग लेक्चर्स. ठीक है. तो इसमें जो था इसने एना फ्रॉइड ने जो है वो शी वाज द लीडर ऑफ न्यू फ्राइडियन एंड शी इसकी दो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन थी. एक इसकी कंट्रीब्यूशन थी, इसने ईगो साइकोलॉजी को प्रमोट किया था. दूसरा इसने चाइल्ड साइको एनालिसिस को जो है वो इसने डेवलप किया था. अच्छा, यहाँ पर इसकी जो है वो कुछ बायोग्राफी से रिलेटेड इसकी चीज़ें बताई हुई हैं. शी वाज बोर्न ऑन December 3, 1895 in Vienna, Austria, the youngest of Sigmund Freud's 6 children. फ्राइड के 6 बच्चे थे और उनमें से जो थी वो सबसे छोटी थी. Extraordinary close to her father, not close to her mother. Tense relationship with her 5 siblings. इसके जो हैं वो अपने बहन भाई के साथ relationships कुछ अच्छे नहीं थे. And I have told you कि फ्रॉइड के भी कुछ अपने जो है वो relationships with their family members, फ्रॉइड के भी कुछ अच्छे नहीं थे. In 1938 she moved to England to escape Nazi rule. ये इंग्लैंड मूव कर गई. She attended a private school but later said she learned little at school. The majority of her education was from the teachings of her father's friends and associates. During World War II, she studied the development of homeless children. She founded her own course in the child psychoanalysis in 1947 and her own clinic in 1952. Acha, now we will discuss about her career. After high school, Anna Freud worked as an elementary school teacher and began translating some of her father's work into the German, increasing her interest in the child psychoanalysis and child psychology and child psychoanalysis. While she was heavily influenced by her father's work, she was far from living in his shadow. Her own work expanded upon her father's ideas, but also created the field of child psychoanalysis. They are trying to say that she followed her father's work. उसने उसके फादर ने बेसिकली, मैंने आप लोगों को बताया था कि सिगमंड फ्राइड हैज वर्कड ऑन द अनकॉन्शियस माइंड and he just believed on the id structure of personality. He just gave the importance to the id. That person wants pleasure at every cost and avoid pain. That is the function of the id. But she actually has worked on the ego. She said that ego is the most powerful thing among the ego and superego. So she worked on the ego psychology. And the Freud has given the psychosexual stages of development.
ठीक है। अब इसने जो है उन्हीं साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को जो है वो इसने जो है वो उसी साइको एनालिसिस को इसने जो है वो इस तरह से किया कि उसने जो है वो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी थी। इसने जो है वो उन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को देखा एंड देन शी जस्ट gave the she just extended the idea of defense mechanisms. ठीक है, उसने इन stages को देखा which was stages of development and ego psychology. She just gave her idea for the ego psychology, not for the id, but she has made some uh, changings in the defense mechanism. These were two of her major works जिसमें उसने पूरे साइको एनालिसिस में से जो है, क्योंकि साइको एनालिसिस इज अ वेरी वास्ट थिंग टू स्टडी, तो उसने पूरे साइको एनालिसिस में से जो चाइल्ड साइकोलॉजी और साइको एनालिसिस को जो है वो अपना इंटरेस्ट बनाया, जिसमें उसने ईगो पर काम किया, ईगो साइकोलॉजी पे, और चाइल्ड साइकोलॉजी पे उसने काम किया जो कि डेवलपमेंट में था, और जो था उसने डिफेंस मैकेनिज्म्स पर उसने काम किया। ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। Although she never earned a high degree, her work in psychoanalysis, child psychology contributed to her eminence in the field of psychology. She began her children's psychoanalytic practice in 1923 in Vienna, Austria, and later served as a chair of Vienna Psychoanalytic Society. During her time in Vienna, she had a profound influence on Erik Erikson, which was also influenced by the Freud. Erik Erikson was a person who later went on to extend the field of psychoanalysis and ego psychology. In 1938, Anna was interrogated by the Gestapo and then fled to London along with her father. ठीक है, इसके साथ जो है ना वो गेस्टापो ने इनको जो है वो इंटरोगेट किया था, एंड देन शी जस्ट हैव टू मूव ऑन टू द लंदन. अच्छा, 1941 she formed the Hampstead Nursery with Burlingham. The nursery served as psychoanalytic program and for homeless children. क्योंकि इसने होमलेस चिल्ड्रन पर काम किया था और वहीं से जो है वो इसने अपनी चाइल्ड साइकोलॉजी की जो है वो बुनियाद रखी थी, बिकॉज शी वाज वर्किंग विद द होमलेस चिल्ड्रन. तो अच्छा, यहाँ पर इनकी बायोग्राफीज जो होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, दे दोज आर वेरी इंटरेस्टिंग, स्पेशली द पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन द साइकोएनालिसिस. Their biographies has an immense impact on their later life work. As they were saying, as I've told you, that I think Freud had more than 2 marriages. Freud ने 2 से ज़्यादा शादियाँ की थी, but I have read somewhere that he was not satisfied with his sexual life, and he started having feelings. जो है ना वो अपने ही कोलीग थे कार्ल जूंग, जो आप लोग पढ़ोगे, उसके साथ भी इसने जो है वो अपना सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश की. ऑन ऑल ऑफ दीज सेक्सुअल डिजायर बेसिस इस बंदे ने जितनी भी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस की इसने बात की, बिकॉज ही फोकस्ड ऑन द सेक्स इंटरेस्ट, ही फोकस्ड ऑन द अनकॉन्शियस माइंड. ही सेड दैट आपकी जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं वो स्टार्ट ही आपके अनकॉन्शियस माइंड से होती है. ठीक है, ही फोकस्ड ऑन द ईग बिकॉज ही फोकस्ड ऑन द प्लेयर प्रिंसिपल. सो दीज वर द बेसिस जिस पर जो है वो बाकी के जो फ्राइड के फॉलोअर्स थे उन्होंने काम किया, और उन्होंने कहा कि फ्राइड जो है वो, जैसे एना फ्राइड ने कहा कि ईड पर जो है वो काम नहीं होना चाहिए, ईड ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं होती, ईगो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है. एना फ्राइड ने ये बात की. और इसी तरह इसने डिफेंस मैकेनिज्म्स की बात की थी. वो आप लोगों ने डिफेंस मैकेनिज्म पढ़े थे लास्टली लेक्चर में, अवेलेबल हैं वो लिंक में और प्रीवियस वीडियो में. तो इसमें आप लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है फर्दर एना फ्राइड ने आगे काम किया. न्यू फ्रॉइडियंस एंड ईगो साइकोलॉजी, अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरह से जो है वो न्यू फ्रॉइडियंस किस तरह से जो फॉलोअर्स थे, सिगमंड फ्रॉइड के जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने किस तरह से जो है वो न्यू फ्रॉइडियंस स्कूल ऑफ थॉट को जो है वो जन्म दिया, एंड ईगो साइकोलॉजी किस तरह से बनी. द मेजर चेंज दीज loyalists introduced was an expansion of the concept of ego rather than being servant of the id. The ego was seen as having a more extensive role. Included ideas, ego was more independent of id, possesses its own energy not derived from the id, and had a functions separate from the id. Another change, this was the ego psychology. They are telling about the ego, that how ego is different from the id and how ego works.
Another change introduced was to place less emphasis on biological forces as influences on the personality. They were saying that less ego जो है वो biological forces पर less influence करती है as influences on the personality. They also minimize the importance of infantile sexuality and the Oedipus complex. जो थे वो इन्होंने ये बात की कि सेक्सुअलिटी इडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो उनको मिनिमाइज किया जाए, इंसान की डिज़ायर्स जो हैं या उसकी जो प्लेयर है वो सिर्फ सेक्सुअलिटी पर ही नहीं बेस करता, बट दे हैव रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ फ्रॉइड दैट इंसान जो है वो सेक्सुअल इंटरेस्ट की तरफ जाता है. सो थस सोशल इंटरेक्शंस इन चाइल्डहुड अज्यूम ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन real or imagined sexual interactions. Social interaction in childhood assume greater importance, यानी कि childhood की जो है वो सेक्सुअल इंटरेक्शन जो कि उसने फैलिक स्टेज में बात की थी, साइकोसेक्सुअल स्टेज में जो उसने बात की थी, उसकी जो फैलिक स्टेज थी दैट वाज आई थिंक थर्ड स्टेज, और उसमें उसने बात की थी कि जो है ना इंसान जो है वो अपने सेक्सुअल इंटरेक्शंस इंसान में जो फैलिक स्टेज में होते हैं और वो इंसान के अंदर इडिपस और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्सेस पैदा होते हैं. तो इन्होंने इस आइडिया को भी जो है वो रिजेक्ट किया था. उन्होंने कहा था इंसान के अंदर, बच्चे के अंदर जो है वो सोशल इंटरेक्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन द सेक्सुअल इंटरेक्शंस. Okay. Anna Freud's contribution to the psychology. Anna Freud created the field of child psychoanalysis, and her work contributed greatly to our understanding of child psychology. अभी मैंने आपको बताया कि उसने ईगो पर काम किया था, और दूसरा जो है वो उसने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में किस तरह बताया कि हमारा अनकॉन्शियसली हमारा फोकस जो है वो चाइल्ड का फोकस सोशल इंटरेक्शन पर होता है, ना कि सेक्सुअल इंटरेक्शन पर. And she also developed different techniques to treat children. Freud noted that children's symptoms differed from those of adults and were often related to developmental stages. She also provided clear explanation of ego's defense mechanisms in her book, The Ego and the Mechanisms of the Defense. She also wrote the book in which he actually जो है वो उसने defense mechanisms पर उसने काम किया था. She actually, I will tell you in the further slides that she actually how she actually made the contributions in the mechanisms. Child psychoanalysis, Anna Freud was not primarily a theoretician. Her interests were more practical, and most of her energies were devoted to the analysis of children and adolescents. And to improving that analysis, उसका जो ज़्यादा फोकस जो था वो बच्चों पर था, और उनको जो है वो उनकी जो है वो क्या कहें कि उसका वर्क ज़्यादा प्रैक्टिकल था, उसने बच्चों पर काम किया था. एंड शी वांटेड टू इम्प्रूव, शी वांटेड टू गिव द ट्रीटमेंट फॉर दोज टाइप ऑफ चिल्ड्रन हु वर ट्रॉमेटिक एंड हु वर लाइक, क्योंकि उसने होमलेस बच्चों पर काम किया था तो उन्हीं की ट्रॉमा और उनकी उसने बात की थी. एक्चुअली शी वांटेड टू से दैट कि अगर हम देखते हैं कि जो होमलेस चिल्ड्रन हैं उनके पास वो बच्चे, उनके पास पेरेंट्स नहीं है कि उनके अंदर जो है वो इस तरह से उनकी सेक्सुअल डिजायर्स या उनकी सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो सके. बट व्हाट अबाउट दोज हु डोंट हैव, उनके पास गार्डियन नहीं है कि उनकी प्रॉपर टेक केयर करे. तो इसीलिए उसने उस आइडिया को रिजेक्ट करके उसने ये कहा था कि सोशल इंटरेक्शन ज्यादा मैटर करते हैं किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट में, ना कि उसके सेक्सुअल इंटरेस्ट ज्यादा मैटर करते हैं. ठीक है. फर्स्ट द रिलेशनशिप ऑफ द चिल्ड्रन. उसने अच्छा उसने मैं अभी आपको बताई थी कि उसने जो बात की होमलेस चिल्ड्रन की, तो उसने फिर उनके ट्रॉमास और उनकी फिक्सेशंस जो है उसने कहा था कि जब उनके पास फैमिली नहीं है तो ये किस तरह से उनके ट्रॉमास और उनकी फिक्सेशंस किस तरह से डेवलप होंगे. ठीक है. अभी प्रीवियस जिन्होंने जो प्रीवियस लेक्चर सुना होगा तो उनको पता होगा कि फिक्सेशंस और जो है वो पेरेंट्स के साथ चाइल्ड की जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से थी. अच्छा, द रिलेशनशिप ऑफ चाइल्ड टू द थेरेपिस्ट इज डिफरेंट. उसने फिर बात की कि अगर बच्चों को जो है वो बात कर रहे हैं कि उनके पेरेंट्स या उनके पास फैमिली नहीं है, तो उन बच्चों की भी कोई ना कोई सोशल इंटरेक्शन है. अब वो बच्चे अगर किसी थेरेपिस्ट के थ्रू ब्रॉट अप हो रहे हैं या किसी ऐसे केयर टेकर के थ्रू ब्रॉट अप अगर हो रहे हैं वो बच्चे, ठीक है, तो वो किस तरह से फिर उनके अंदर ये सारी की चीजें किस तरह, तो फिर ये होगा कि बच्चे जो है वो दे मस्ट बी स्टार्टेड हैविंग फीलिंग्स फॉर दोज टाइप ऑफ पर्सन.
तो उसमें उसने ट्रीटमेंट्स बताई थी कि उसने ये कहा था कि रिलेशनशिप ऑफ द चाइल्ड विद द थेरेपिस्ट इज डिफरेंट. The child's parents are still very much part of his or her life, a part the therapist cannot and should not try to usurp. यानी कि उसने कहा कि बच्चे के लिए पेरेंट्स की एक अलग से सेपरेट स्पेस तो है, लेकिन एक जो ये है थेरेपिस्ट है, ही शुड नॉट बी एक्ट लाइक हर दैट चिल्ड्रंस पेरेंट. ठीक है. सो वो जो है वो थेरेपिस्ट का रोल बता रही थी, एना फ्रॉइड थेरेपिस्ट का रोल बता रही थी. बट नीदर कैन बी थेरेपिस्ट प्रिटेंड टू बी जस्ट एन अदर चाइल्ड रादर देन एन अथॉरिटी फिगर. ठीक है. थेरेपिस्ट को कभी भी जो है वो अथॉरिटी फिगर नहीं होना चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि वो बच्चा जो है वो जो हमने ट्रांसफरेंस का प्रोसेस पढ़ा था, तो हो सकता है कि वो बच्चा जो उस पर डिपेंडेंट करना शुरू हो जाए. एंड आई फाउंड दैट द बेस्ट वे टू डील विद द ट्रांसफरेंस प्रॉब्लम was the way that come mostly naturally. Be a caring adult, not a new playmate. बच्चों के लिए जो है वो इस तरह ना हो कि आप बच्चों के लिए इतने केयरिंग और इतने जो है ना वो अवेलेबल हैं कि बच्चा आप पर डिपेंड करना शुरू कर दे, तो वो ट्रांसफेरेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगी. तो इस ट्रांसफेरेंस से बचने के लिए उसने ये बात की कि केयरिंग अडल्ट बने, लेकिन उसके प्लेमेट ना बने, उसे अपने ऊपर डिपेंड ना होने दे. नॉट अ सब्सटीट्यूट पेरेंट्स, ना ही उसके पेरेंट बनने की कोशिश करें. हर अप्रोच सीम्स अथॉरिटेरियन by the standards of many modern child therapies, but it might make more sense. उन्होंने कहा कि उसकी अथॉरिटेरियन इज दैट टाइप ऑफ अप्रोच कि जिसमें जो है वो आप बच्चों को हुक्माना अंदाज में, बच्चों को क्या अथॉरिटेटिव अप्रोच की जिसमें कोई ना कोई हुक्माना अंदाज या बॉसी जो है ना वो एटीट्यूड हो. तो उसने कहा कि ये समहाउ बॉसी एटीट्यूड जो है वो लग रहा था उसका, लेकिन ये कि ये बच्चों के लिए कहीं ना कहीं उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए दैट वाज द नीडी थिंग. ओके. एना फ्रॉइड पब्लिश इंट्रोडक्शन टू द टेक्निक ऑफ चाइल्ड एनालिसिस, इसी तरह जिसने अभी उसने बताया कि इस तरह से उसने टेक्निक दी, और जो है वो 1927 में उसने इस चाइल्ड एनालिसिस की टेक्निक्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया. Developed an approach to psychoanalytic therapy with children that took account to their relatives' immaturity and the level of their verbal skills. Her innovations included the use of play materials and observations of the child in the home setting. उसकी जो जो टेक्निक्स थी बेसिकली उनमें से थोड़ा सा आपको पार्ट जो है बताया जा रहा है कि उसने जो टेक्निक्स दी थी उसने जो है वो यूज़ ऑफ प्ले मटेरियल्स का बताया था कि किस तरह से बच्चों के साथ जिनकी फैमिलीज नहीं है तो उनके थेरेपिस्ट को जो है वो ये जो है वो उनके साथ बच्चों के साथ बिहेव करना चाहिए, उनके साथ किस किस्म के प्लेज होने चाहिए और उनके साथ किस किस्म की प्लेइंग मटेरियल जो है उनको प्रोवाइड करना चाहिए. She opened a clinic next door to her father's house and therefore there established a treatment center and psychoanalytic training institute that attracted clinical psychologists from throughout the world. उसने एक अपना जो है वो क्लिनिक बनाया. The details you have been I have told you. और जो है वो उसने अपना एक इंस्टीट्यूट बनाया जिसमें वो साइकोएनालिटिक ट्रेनिंग भी दिया करती थी साइकोलॉजिस्ट को. और स्टिल दैट इज वर्किंग टुडे एज इन द लंदन. वो वहाँ पर अभी तक जो है वो इंस्टीट्यूट्स और वो जो क्लिनिक्स हैं वो अभी तक काम कर रहे हैं. स्टडीज वर रिपोर्टेड इन एनुअल वॉल्यूम्स ऑफ सेकंड स्टडी ऑफ द चाइल्ड. जो है वो इसकी स्टडीज जो पब्लिश हुई थी वो साइकोएनालिटिक स्टडी ऑफ द चाइल्ड के नाम से इसकी स्टडी जो है वो पब्लिश हुई थी. ओके. देयर इज अनदर उसके साथ जो है वो एनालाइजिंग चिल्ड्रन के साथ एक प्रॉब्लम था. दैट another problem with an analyzing children is that their symbolic abilities are not as advanced as those of adults. अच्छा, फिर उसने बात की क्योंकि फ्रॉइड हैज वर्कड ऑन द अडल्ट्स. मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रॉइड ने लेटर ऑन जो अपनी थेरेपीज की थी वो उसने अडल्ट्स पर की थी. उसने चाइल्ड डेवलपमेंटल स्टेज तो उसने बता दी थी, बट उसकी जो प्रैक्टिस थी जो कि क्लिनिकल फील्ड प्रैक्टिस थी दैट वाज मोस्ट ऑफ विद द अडल्ट्स. उसने ये कहा था कि बच्चों के साथ मसला है कि बच्चे सही तरीके से उस तरीके से अपनी फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जो कि इसकी जो है वो एना फ्रॉइड की जो थ्योरी में जो प्रॉब्लम था. द यंगर वन सर्टेनली मे हैव ट्रबल रिलेटिंग देयर इमोशनल डिफिकल्टीज वर्बली. बच्चे अपनी प्रॉब्लम सही तरह से नहीं बता पाते. Even older children are less likely than adults to bury their problems under complex symbols.
जो है वो बड़े बच्चों के साथ भी इवन ये प्रॉब्लम हो सकता है. आफ्टर ऑल द चाइल्ड्स प्रॉब्लम्स आर हियर एंड नाउ. देयर हैजंट बीन मच टाइम टू बिल्ड अप डिफेंसेस. बच्चों के अंदर, क्योंकि बच्चों की अभी तो उनको इतना पता ही नहीं है कि किस तरह से उन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है. सो देयर हैजंट उनको इतना जो है ना टाइम नहीं मिलता बच्चों को कि वो अपने लिए जो है वो कोई ना कोई किसी सोर्स का जो है ना वो अपना अपने लिए डिफेंस बना सके. सो द प्रॉब्लम्स आर क्लोज टू द सरफेस एंड टेंड टू बी एक्सप्रेस्ड इन मोर डायरेक्ट, लेस सिंबॉलिक बिहेवियरल एंड इमोशनल टर्म्स. तो जो है वो बच्चे जो है वो लेस सिंबॉलिक और इमोशनल टर्म्स जो है वो उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह से एक्सप्रेस करना है. ठीक है, तो दैट वाज द प्रॉब्लम विद द जो है वो एनालाइजिंग चिल्ड्रन. तो बच्चों को एनालाइज करने में ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे. मोस्ट ऑफ हर कंट्रीब्यूशंस टू द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी कम आउट ऑफ हर वर्क एट द हेम्स्टेड चाइल्ड थेरेपी क्लिनिक इन लंदन. वही जो अभी मैंने आपको बताया कि उसने क्लिनिक लंदन में बनाया था, which she helped to set up. Here she found one of the biggest problem was communications among therapists, whereas adult problems were communicated by the means of traditional labels, children problems could not be. इसने कहा कि बच्चों की प्रॉब्लम्स को तो इतने जो है ना वो अच्छे तरीके से वो डील बच्चे जो है वो इतने अच्छे तरीके से वी कैन नॉट स्पीक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द चिल्ड्रन बिकॉज दे कैन नॉट एक्सप्रेस देयर इमोशंस. So because children's problems are more immediate, she reconceptualized them in terms of the child's movement along a developmental timeline. A child keeping pace with most of his or her peers in terms of eating behaviors, personal hygiene, play styles, relationship with other children, and so on, could be considered healthy. When one aspect or another of child's development seriously lagged behind the rest, the clinician should assume that there was a problem and could communicate the problem by describing the particular lab. ठीक है, उसने कहा कि बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है वो बच्चों की प्रॉब्लम्स बहुत इमीडिएट होती हैं, उनको रिकॉन्सेप्चुलाइज करना चाहिए. चाइल्ड्स मूवमेंट के बच्चों की डेवलपमेंट के टाइम लाइन में उनको जो है वो रिकॉन्सेप्चुलाइज करना चाहिए. और जो है वो बच्चे जो हैं वो, क्योंकि बच्चों का एक पेस होता है, बच्चे उसी स्पेसिफिक बिहेवियर्स पर बच्चे काम करते हैं और उनकी पर्सनल हाइजीन पर ख्याल करना चाहिए. सो दीज वर द थिंग्स व्हिच शी सजेस्टेड. Okay, now this is the interesting thing about this कि उसने जो डिफेंस मैकेनिज्म दिए थे जो कि फ्रॉइड ने दिए थे, तो इसने उन डिफेंस मैकेनिज्म को जो है वो कुछ तो जो है वो इसने उनको तरतीब दिया और जो है उनको ऑर्डर किया और उसके बाद जो है ना इसने बताया कि किस तरह से जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म कुछ इसने मजीद एडिशन भी की थी उन डिफेंस मैकेनिज्म में. Acha, Anna Freud mentioned them, those some defense mechanisms, but systematically organized them. सबसे पहले उसने कहा कि reaction formation होता है, फिर उसने कहा कि repression होता है, and then she made the identification, and then she made the introjection. At the fifth number, she made the isolation. Sixth number, she made projection, and then seven rationalization, denial, and नार्कोटाइजेशन. अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी जो है वो यहाँ पर जो है वो उसने आगे फर्दर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसने किस तरह से जो है वो अपने इसने बेसिकली उनको मोर इलेबोरेटेड फॉर्म में, जो कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सुने हैं कि जो फ्रॉइड के डिफेंस मैकेनिज्म थे उनको बताया और उनको सिस्टमेटिकली अरेंज किया था और कुछ नए भी जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म इसने ऐड किए थे. ओके, द टर्म डिफेंस सुनने जिन लोगों ने पहले प्रीवियस नहीं सुना व्हाट इज डिफेंस in relation to psychology was first used by the Sigmund Freud 1894. He meant it to describe, as Anna Freud says, the ego's struggle against painful or undurable ideas or effects which may lead to neurosis. ठीक है, ईगो किस तरह से हमारे अंदर स्ट्रेस को कम करने के लिए जो है वो पेनफुल और जो है ना अनड्यूरेबल आइडियाज को और उनके इफेक्ट्स को जो है ना कम करने के लिए जो हम यूज करती है हमारी ईगो, जो कोपिंग स्ट्रेटजी यूज करती है, that is the defense. And a defense is developed by the ego in order to protect itself against being overcome by unconscious demand like sex and aggression. The work of psychoanalyst is to get a person to bring the instinctual urges into the consciousness, which may involve isolating the original pain experienced when they were confronted by an impulse that was not satisfied. So this was also the definition of the ego. Freud notes that when a person succeeds
इन क्रिएटिंग डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट एंजाइटी, फ्रॉइड ने वही बात की कि किस तरह से इंसान जो है ना जब अपनी एंजाइटी और जो है वो उसको स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए ईगो और सुपर ईगो का जो है ना वो जब बैटल होती है ईड की और सुपर ईगो की, तो ईगो किस तरह से उनको जो है वो सेटिस्फाई करता है. Okay, so these were the defense mechanism which she gave. I will tell you about the new ones, because as you already know the Freud's defense mechanism, there was this splitting. Everyone in the world is seen as all good or all bad with nothing in between. हर बंदा जो है वो या तो तमाम बुरा कंसीडर किया जाता है और या तो जो है वो तमाम अच्छा कंसीडर किया जाता है. यहाँ पे इसने फर्दर एक्सप्लेनेशंस बताई थी, ये नेम ऑफ डिफेंसेस दिए थे, ये इसने डिस्क्रिप्शंस बताई थी कि क्या होते हैं. यहाँ पे उसने एग्जांपल्स बताई थी, because these were the descriptions which was given by the Anna Freud. So you think your best friend is absolutely worthless because he forgot a lunch date with you. So आप या तो उसे ये समझेंगे कि जो है ना वो लंच डेट जो है ना वो भूल गया, तो आप उसे कम्प्लीटली जो है वर्थलेस करार दे देंगे. Isolation of effect, attempting to avoid a painful thought or feeling by objectifying and emotionally detaching oneself from the feeling. Acting. Acting about indifferent towards someone when you really dislike that person. आप अक्सर होता है कि आप पर्सन को लाइक भी नहीं करते, बट आप उसे जो है वो टोटली डिफरेंट बिहेव कर रहे होते हैं, जो कि आप एक्चुअली जो है वो फील कर रहे होते हैं, वो आप वो बिहेव नहीं कर रहे होते. ठीक है, सो आई यू ट्राइंग टू बी आइसोलेटेड ऑफ दैट इफेक्ट. आप उस इफेक्ट जो आप फील कर रहे हैं, आप उस इफेक्ट से जो है वो आइसोलेट कर रहे हैं अपने आप को. ऑल्ट्रिज्म की अब हम बात करेंगे. हैंडलिंग योर ओन पेन बाय हेल्पिंग अदर्स. आफ्टर योर वाइफ डाइज यू कीप योर सेल्फ बिजी बाय वॉलंटियरिंग एट योर चर्च. आप जो है वो किस तरह से अपनी फीलिंग्स को अल्ट्रूज करते हैं कि आप दूसरों को हेल्प आउट करने, अपना पेन कम करने के लिए दूसरों को हेल्प आउट करना शुरू कर देते हैं. ह्यूमर, focusing on funny aspects of painful situation. The person's treatment to cancer makes him loses her hair, so he makes jokes about being bald. Sublimation है. Sublimation redirecting unacceptable institutional drives into personally and socially acceptable channels. एज के इंसान जो है वो किस तरह से अपनी फीलिंग्स को जो है वो इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर जो है वो सोशली एक्सेप्टेबल मैनर में उसको एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है. जैसे कि अब आप देखें कि इफ एज आई टोल्ड यू कि जो है एक देयर वाज अ पर्सन, अगर किसी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो न्यूड आर्ट को जो है वो प्रमोट करते हैं, तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी दैट दैट पर्सन इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स, तो वो उनको सोशली एक्सेप्टेबल करने के लिए उस आर्टिस्टिक फॉर्म में ले आते हैं. सिमिलरली इफ अ पर्सन इज हैविंग सम शॉर्ट टेम्परामेंट इश्यूज, तो जो है वो क्या होता है कि वो भी जो है वो अपने उसको अपनी फीलिंग्स को करने के लिए सोशली एक्सेप्टेबल अपने उन शॉर्ट टेम्परामेंट को, तो कोई ना कोई ऐसा प्रोफेशन वो अपना लेंगे कि जिसमें उनकी फीलिंग्स जो है वो सोशली एक्सेप्टेबल हो जाए. ट्राइंग टू reverse undo a thought or feeling by performing an action that signifies an opposite feeling than your original thought. You have feelings or dislike for someone, so you buy them a gift. अच्छा, ये भी उसी तरह का ही है, आइसोलेशन इफेक्ट की तरह का ही है कि अगर आप किसी को पसंद नहीं करते बट यू ट्राई टू गिव देम अ गिफ्ट. अच्छा, ईगो साइकोलॉजी अबाउट. And then there comes the ego psychology. Unlike June and Adler, she remained faithful to the basic ideas of her father developed. She basically just, as I have told you earlier, that she said that uh, she was more interested in that dynamics of psyche than its structure, and was particularly fascinated by the place of ego in all of his Freud. All of this. Freud had, after all, spent most of his efforts on the id and unconscious side of psychic life. As she rightly pointed out, the ego is the seat of observation. She is probably best known for her book, The Ego and the Defense Mechanism, and the focus on the ego began a moment in the psychoanalytic
सर्कल्स। तो उससे क्या हुआ कि जब इसने ईगो साइकोलॉजी पर काम किया तो जो ज़्यादातर आने वाले जो लोग थे उनका भी जो है वो फोकस जो है वो ईगो पर होना शुरू हो गया। इट टेक्स फ्रॉइड्स अर्लियर वर्क एज क्रूशियल फाउंडेशन but extend into more ordinary practical day-to-day word of the ego. In this way, Freudian theory can be applied not only to the psychopathology but to social and developmental issues as well. Erik Erikson is the best known example of an ईगो साइकोलॉजिस्ट। एरिक एरिक्सन ने फिर एना फ्रॉइड के वर्क को जो है फर्दर आगे परसू किया और जो है वो उसने जो है वो शी वर्कड ऑन द ईगो साइकोलॉजी and research. She was influenced research in Freudian. She standardized the records for children and diagnostic profiles, as we have I've told you that किस तरह से उसने बच्चों पर काम किया और जो है वो she also led the way in the use of natural experiment, that is careful and analysis of groups of children who suffered from similar disabilities such as blindness, because she was working on the homeless children and she was working on the children with disabilities. The common criticism of Freudian psychology as having an empirical basis is true only if empirical basis is restricted to laboratory experimentation. Most of Anna Freud's work is contained within the writings of Anna Freud, a 7-volume collection of her book and papers, including the ego and mechanisms. उसने जो है वो अपनी बुक लिखी थी जिसमें उसने 7 वॉल्यूम जो है ना वो दिए थे. Comment ego psychology became primarily American form of psychoanalysis from the 1940s, early 1970s. One goal of the new Freudians make psychoanalysis accepted the part of scientific. In the process, the new Freudians fostered a more conciliatory relationship between psychoanalysis and academic experimental psychology. दैट वाज इट फॉर द जो है वो किस तरह से उन्होंने बताया कि साइकोएनालिसिस 1940s एंड 1970s में जो है वो प्राइमरी अमेरिकन जो है वो बन गया था, साइकोलॉजी फॉर्म ऑफ साइकोएनालिसिस बन गया था और जो है वो साइकोएनालिसिस को जो है एक साइंटिफिक साइकोलॉजी की स्टडी जो है वो दी गई. न्यू फ्रॉइडियंस ने इसको जो है वो साइंटिफिक स्टडी का जो है वो दर्जा दिलवा दिया और जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन साइकोएनालिसिस और एकेडमिक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के दरमियान जो है वो न्यू फ्रॉइडियंस ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया कि ये साइकोएनालिसिस जो है वो एकेडमिक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इन दोनों का आपस में जो है वो रिलेशनशिप है.